मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड आईसीएमआर। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे श्री राजेश भूषण जी सेक्रेटरी द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रेजेंटेशन के साथ आईसीएमआर की तरफ से जो ऐड करना है और एमएचए की तरफ से, देन विल टेक क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम योर साइड। तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज स्टार्ट द ब्रीफिंग सर। अब आ रहा है? Can you hear me now? Okay. So this is a brief presentation on the status of COVID-19 in India. Can we go to the next slide, please? Okay. मित्रों, जो पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि हम विश्व के जनसंख्या के आधार पर दूसरे सबसे बड़े देश हैं। जब भी हम कोविड के किसी भी संख्या की बात करते हैं, चाहे कुल कोविड के केसेस हों या कुल एक्टिव केसेस हों या कुल मृत्यु के आंकड़े हों, ये नहीं भूलना चाहिए कि वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये स्लाइड ये दिखाती है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने कोविड के मैनेजमेंट में अभी तक संतोषप्रद कार्य किया है। So what we are trying to tell you here is that in spite of a population of 1.3 billion people, India has been able to manage COVID relatively well. Now, when I say that we have been able to manage this disease, this infection relatively well, what is it that I am implying? What we are trying to explain here is that if you look at cases per million population, it still remains amongst the lowest in the world. Today we have 538 cases per million population. This is as per WHO situation report. And you have figures for other countries also, from Americas, from Europe, and from other parts of the world. We are trying also to emphasize the point that case per million population in some countries are at least 16, 17 times more than what it is in India. Similarly, if we look at death per million population, again, the scenario in India is amongst the lowest in the world. We have 15 deaths per million population, whereas we have countries where it is 40 times as much. This is another fact that I would like to emphasize for your consideration, which is that if you look at the gap between these two worms here, representing the active cases, that is the cases which are presently either hospitalized and under treatment or are at home isolation being monitored. So that group of people and recovered cases, people who have recovered and gone home, that gap is progressively increasing. So the gap between active cases and recovered cases is progressively increasing. Today, we have 4,76,000 odd recovered cases and only 2,69,000 odd active cases. So when we talk of caseload of COVID in India, case load is 2,69,000 people. That is important because this tells us that at the end of the day, we have managed a situation where our healthcare infrastructure is not unduly burdened, is not creaking because of the pressure. So that is the significance of this slide. Now, in absolute numbers, we have told you that the active cases are 2,69,789 and recovered cases are 4,76,378. यहाँ हम ये निवेदन आपके समक्ष करना चाहते हैं कि जो रिकवरीज हैं वो लगभग दुगनी 1.75 टाइम्स हो गई हैं एक्टिव केसेस की तुलना में। यानी जितने लोग अस्पतालों में एडमिशन के लिए जा रहे हैं उससे कहीं अधिक संख्या में लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं।
ये हम आपको रिकवरी रेट की जो बदलने की दर है, रेट ऑफ चेंज आपको दिखा रहे हैं, कैसे रिकवरी रेट राइज कर रहा है। आप देखेंगे कि 10% से ये 26% हुआ, फिर 47% हुआ 31 मई तक, और 9 जुलाई को ये 62% हो गया है, और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिकवरी इज एप्रिशिएबल। ये कुछ जनसंख्या से संबंधित और आयु वाली जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आप देखें कि 14 बरस से कम की आबादी का हिंदुस्तान की कुल आबादी में क्या प्रतिशत है, तो वो 1%, वो 35% है। उस 35% आबादी में कोविड डेथ्स 1% हुई हैं। 15 से 29 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 18% हैं, और इस आयु वर्ग में कोविड की जो डेथ्स हैं वो केवल 3% हुई हैं। 30 से 44 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 22% है, और इस एज ग्रुप में कोविड की जो डेथ्स हैं वो 11% है। तो अगर आप इस पूरे ब्लॉक को एक साथ देखें, यानी 14 साल से कम के आयु से लेकर 44 वर्ष की आयु तक के लोग, तो इसमें जो कोविड से रिलेटेड डेथ हैं वो केवल 15% हुई हैं। लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक हाई रिस्क पॉपुलेशन भी है। ये वो लोग हैं जो 55 वर्ष से ऊपर की, 45 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। 45 से 59 वर्ष की आयु में आप देखेंगे कि कुल जनसंख्या का ये 15% है, जबकि इसमें कोविड की जो डेथ हैं वो 32% है। 60 से 74 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 8% हैं, लेकिन इसमें कोविड से जो डेथ हुई हैं वो 39% है। और 75 वर्ष से अधिक आयु के उम्र दराज जो लोग हैं वो कुल आबादी का 2% हैं, लेकिन यहाँ जो कोविड से डेथ हुई हैं वो 14% है। यानी इसका निचोड़ ये है कि भारतवर्ष की 25% आबादी जो 45 वर्ष से लेकर ऊपर की आयु की है, 75 वर्ष से ऊपर तक की, उसमें 85% कोविड रिलेटेड डेथ हुई है। तो ये आयु वर्ग है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, भारत सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को भी। इसको हम फिर फर्दर आपको और ग्रैनुलर बेसिस पर ये बता रहे हैं कि पीपल हु आर बिटवीन 60 to 74 years of age, they constitute 8% of India's total population. However, they also show 39% of COVID-linked deaths, and people who are more than 75 years are 2% of India's population, but they show 14% of COVID deaths. So this is a brief summary that I wanted to present before you. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request the representative of ICMR, ma'am, please. So ICMR has been continuing its efforts to ramp up the testing capacity in the country, and also making testing available at even the lower levels, the district level, and increasing the outreach of testing to the best of its capacity. In addition to the RT-PCR test, we have deployed the TrueNat and CBNat based testing also. And moving a step forward, very recently ICMR also has validated and approved the use of a rapid antigen point of care test, which is now validated, recommended for use, and is also being used now in the containment zones of various states as well as in the hospitals. So with this, we really hope to follow the approach of test, track and treat, because if we take this testing to the grassroots level, the number of individuals, infected individuals, mild symptomatic or even asymptomatic individuals that you'll be able to catch really increases.
and this is likely to catch individuals in the early stage of infection and also lower the burden on hospitals. So this is one strategy which has taken up well. We also came up with advisories, revised advisories on testing, which was loaded up on ICMR website on 25th of June. And subsequently, we also have come up with a very explicit advisory on the use of antibody-based IgG assays, which are recommended as a surveillance tool. And also the advisory for that is there on ICMR website. It has been disseminated to the states. Multiple letters, joint letters from Secretary Health and Secretary Department of Health Research have been sent. And the other step that ICMR has very recently taken up for increasing the testing is that all the NABH hospitals and the NABL approved labs, as well as all the government hospitals, have been approved for conducting the antigen-based test. And we already have approved hundreds of applications for the antigen-based assay testing, and further approvals are in progress. And also the initial criteria of ICMR was that all the private labs who are intending to undertake COVID-19 testing, they were supposed to submit a NABL accreditation certificate, completed one. But now, in order to enhance the testing and speeden up the liberalization of the testing, we have now allowed the private labs to apply for NABL and in parallel submit their application to ICMR. We give them a 1 month time period in which they can complete the NABL accreditation and submit their completed accreditation to us. So these are quite a few steps that we have taken. The ramping up of number of labs is happening at a very fast pace. As I speak today, we have 1132 labs which are operational, including CBNAT and TrueNAT labs also, and more are in pipeline through various efforts of ICMR as well as the mentor institutions which have been identified in centers of excellence. So that effort is ongoing. Our number of tests have increased, and on an average we are testing more than 2.6 lakhs of samples per day, and that we hope to see a further rise by the use of the antigen tests. Thank you. Thank you very much, ma'am. Now I request the representative of the Ministry of Home Affairs, please, ma'am. नमस्कार। जैसे आपको पता है, अनलॉक 2 के जो नए दिशा निर्देश हैं वो 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं। इन नए दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से और अधिक गतिविधियों को शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, परंतु 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। अब लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का अनुपालन बहुत ही आवश्यक हो गया है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, शराब या तंबाकू के सेवन की मनाही इत्यादि। गृह मंत्रालय लगातार दिशा निर्देशों के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी रख रही है। जहां कोई भी समस्या आती है या दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट मिलती है, उसे तुरंत ही संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों को परामर्श या निर्देश भी दिए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उच्च स्तर पर नियमित रूप से संबंधित राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। एनसीआर क्षेत्र में संगठित प्रयास द्वारा ही हम कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने में सफल हो सकते हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल हैं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार की दरों पर नियंत्रण रखना, राजधानी में अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध कराना, रैपिड एंटीजन प्रणाली का उपयोग करके टेस्टिंग बढ़ाना,
कंटेनमेंट जोन का ध्यानपूर्वक सीमांकन करना, सभी संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, आईटी सिस्टम्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करना तथा एम्स दिल्ली कोविड टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की सुविधा शुरू करना। और ये जो एम्स दिल्ली कोविड टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की सर्विस है, आज ये पूरे देश के जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो इस सुविधा से क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। संयुक्त प्रयासों से दिल्ली में कुछ हफ्तों में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली में रैपिड एंटीजन पद्धति का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। टेस्टिंग की भी क्षमता को बढ़ा दिया गया है। 8 जुलाई तक 6,79,831 टेस्ट कर दिए गए हैं, यानी 10 लाख की आबादी पर 35,780 टेस्ट। अब प्रतिदिन लगभग 20,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि होने पर भी एक्टिव केसेस पर नियंत्रण है। 9 जुलाई को दिल्ली में लगभग 23,452 एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी रेट 72% से अधिक है। डबलिंग रेट बढ़कर 29.7 डेज यानी कि लगभग 30 दिन हो गई है। 1 जून को दिल्ली में जहां 4,456 हॉस्पिटल बेड उपलब्ध थे, आज 15,096 बेड उपलब्ध हैं। 8 जुलाई को इनमें से लगभग 10,237 बेड खाली थे, यानी कि लगभग 68%। ये सब आंकड़े मैं इसलिए साझा कर रही हूं क्योंकि हम दिल्ली वासियों को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करने के लिए प्रयासरत हैं। डीआरडीओ द्वारा स्थापित सरदार वल्लभ भाई कोविड हॉस्पिटल इस पूरे अभियान में एक गेम चेंजर के रूप में सामने आया है, जिसने दिल्ली में ही नहीं देश में पहली बार थोड़े ही समय लगभग 12 दिन में श्रेष्ठ सुविधा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध करा दी है। सरकार की ओर से हम फिर से डीआरडीओ, आर्म्ड फोर्सेस और निजी क्षेत्र के जो प्रमुख योगदानकर्ता थे उनकी तरफ अपना आभार प्रकट करते हैं। राधा स्वामी सत्संग, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और दिल्ली सरकार ने मिलकर जो 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर को क्रियान्वित किया है, वो भी इस विशाल स्तर पर एक बहुत ही अनूठा और देश का सर्वप्रथम प्रयास रहा है। हमारा सबसे आग्रह है कि सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग दें तथा राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें, ताकि हम सब मिलकर कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल हों। धन्यवाद। धन्यवाद। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन हैं, हम आपके भी क्वेश्चंस लेंगे। सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल प्लाज्मा की बात हो रही है। ऑनलाइन क्वेश्चन जो है, हैज़ बेनिफिट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी बीन इन्वेस्टिगेटेड एनफ फॉर द ब्लैंकेट अलाउंस? मैं आपकी जानकारी में ये तथ्य लाना चाहूँगा कि प्लाज्मा के उपयोग का निर्णय जो ट्रीटिंग क्लिनिशियन हैं वो लेते हैं, और प्लाज्मा थेरेपी को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी क्लिनिकल प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस में इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी के रूप में दर्शाया है। किन मामलों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाना है, ये भी क्लिनिकल गाइडलाइंस जो भारत सरकार ने जारी की हैं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। प्लाज्मा की उपलब्धता के लिए अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग रैंडमाइज्ड प्लाज्मा ट्रायल की ओर भी इंगित करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन प्रश्न है संभवतः ये वो भी पूछना चाह रहे हैं। तो रैंडमाइज्ड जो ट्रायल हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी का, वो आईसीएमआर के तत्वावधान में हो रहा है, अंडर द एजिस ऑफ आईसीएमआर। इट हैज़ वेरियस पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स, और उसमें लगभग 452 मरीजों पर रैंडमाइज्ड ट्रायल हो रहे हैं। अभी भी, हालांकि वो ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो इच्छुक अस्पताल हैं उन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए आईसीएमआर के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। और हमारा ये भी कहना है कि जहां इंडिविजुअल केसेस में ट्रीटिंग क्लिनिशियन प्लाज्मा थेरेपी के लिए जाते हैं, वहां न तो आईसीएमआर और न ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की किसी फॉर्मल अप्रूवल की आवश्यकता है।
99. आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। मेरा दो सवाल है, एक आईसीएमआर से, एक सर आपसे। सवाल ये कि क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है इसको लेकर के काफ़ी क्वेरीज की जा रही हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। और आईसीएमआर से सवाल है कि अभी हाल ही में एक नोट आया था जिसमें कहा गया था कि 7 तारीख को वो जो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कोविड की वैक्सीन बनी है, और उसके बाद 15 तारीख को उसे लॉन्च किया जाएगा। क्या वो सही था? अगर सही था तो क्या है उसमें, और अगर वो गलत था तो क्या किस तरह की मिस्टेक हुई है? मैं दोनों ही प्रश्नों पर कुछ प्रारंभिक जानकारी आपको दे देता हूं, उसके बाद आईसीएमआर अगर चाहेंगे तो मुझे सप्लीमेंट करेंगे। पहला प्रश्न है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संबंध में। आज भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज ऐसे हैं जहाँ लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स हुई हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 49 डिस्ट्रिक्ट्स alone account for 80% of कोविड केसेस। तो जहां 733 से अधिक जिलों वाले देश में 49 जिले ही 80% से अधिक केसेस को दर्शा रहे हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। हमारा ये भी मानना है कि जहां भी एक्टिव केसेस होते हैं, यदि हम निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें तो हम 72 घंटे में यानी 3 दिन में जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं एक्टिव केसेस के, उनको ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा वातावरण जहां आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस और ट्रैक करने की स्थिति में हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। अब जो दूसरा प्रश्न था आपका, मैं उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य, द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड, देन वी विल कम टू व्हाट आईसीएमआर इज डूइंग। इस समय पूरे विश्व में 100 से अधिक वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग ट्रायल की स्टेज पर हैं। भारत के लिए संतोष की बात यह है कि 2 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि एंटायरली इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट हैं। इसमें एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और दूसरी मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड आईसीएमआर के साथ सहयोग कर वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहा है। इन दोनों वैक्सीन्स ने एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडीज पूरी कर ली हैं प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद। एनिमल टॉक्सिसिटी की जो स्टडीज़ हैं वो होती हैं चूहे पर, वो होती हैं गिनी पिग पर, वो होती हैं रैबिट पर। सो दीज स्टडीज़ हैव ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड एंड द टॉक्सिसिटी डाटा in respect of both these vaccines has been shared with the Drugs Controller General of India. Thereafter, the Drugs Controller General of India has permitted these 2 vaccines to go in for phase 1 and phase 2 clinical trials. phase 1 और phase 2 clinical trials की जो sites हैं, यानी जिन जगहों पर वो ट्रायल होगा, वो फाइनलाइज की जा चुकी हैं और अब इसको प्रारंभ होना, यानी अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि जो सिलेक्टेड साइट्स हैं और जो गिवन अप्रूवल है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल का, उसके आलोक में ये वैक्सीन ट्रायल जल्दी ही प्रारंभ होंगे और इनके नतीजे जब भी आएंगे हम आपके समक्ष रखेंगे। आईसीएमआर, वुड यू लाइक टू जस्ट अ सेकंड प्लीज, जस्ट अ सेकंड। आईसीएमआर, वुड यू लाइक टू सप्लीमेंट समथिंग ऑन दिस? देन वी विल टेक योर क्वेश्चन। Yes. So as sir correctly said that the whole idea is to have indigenous candidates हमारे पास हैं। रिकॉर्ड टाइम में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिजिनस कैंडिडेट एक नई बीमारी के लिए बनाया है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये वैक्सीन जितनी फास्ट डेवलप हो के लोगों के लिए अवेलेबल हो पाए, उतना फास्ट इसको डेवलप कराएं। DGICMR के लेटर का इंटेंट था कि साइट्स को
बोलें कि फास्ट ट्रैक करो, हमारे पास कैंडिडेट है, ऐसा ना हो दैट वी मिस द बस। और वैक्सीन की देखिए आज ज़रूरत है, अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स में जाएंगे बनाने के और 2 साल बाद वैक्सीन लाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो द एंटायर रेस्टलेस इन द गवर्नमेंट इन आईसीएमआर इसकी वैक्सीन को फास्ट ट्रैक करिए, इसको जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराइए हमारे कंट्री के सिटीजन्स को। सो द स्पिरिट बिहाइंड द लेटर वाज दिस ओनली। Yes, 116. Yeah. I got other questions, but just to supplement these questions. One is you said this is a localized outbreak. Please, give a definition of what is localized outbreak and what is community. Then the second point, the second question supplementary that you asked is on the issue of Bhushan about the deadline you gave of 15th August. So that it can be done. I understand the intent and the outlook, but it looks like as if a Prime Minister's announcement is to be made because you are at the final stage. Is that the reason for why you are trying to speed up the whole process? And third, on this black marketing of drugs, that has started. And there are a number of drugs which we have checked out, Pavasmine and Redismus, all these are not available easily in chemistry. What are you doing to ensure that people get this to survive? So the first thing, please don't read something which is not there in DG ICMR's letter. DG ICMR's letter's intent is only to expedite duly approved clinical trials without compromising on safety and security concerns. Coming to black marketing, it has come to the notice of the Ministry of Health and Family Welfare that certain drugs are not available freely in the market. Therefore, the Drugs Controller General of India on 6th July and 7th July wrote 2 letters to the companies which are manufacturing these drugs, and he made 2 very specific suggestions. First suggestion was that these companies must put in place a 24/7 helpline where the patients or their caregivers, family members, could contact in case the drug is not available in the market or is being overcharged. So that is the first suggestion. The second suggestion that he gave to these manufacturers is that they must proactively put on their website the details of their distribution network and their supply lines, so that all confusion and anxiety in the market subsides. In addition, the Drugs Controller General has also directed state governments, उन्होंने निर्देश दिया है राज्य सरकारों को कि उनका जो ड्रग इंस्पेक्टर नेटवर्क है वो लोग ये सुनिश्चित करें, बाजार में इंस्पेक्शन करके, कानून उनको वो पावर देता है कि कोई भी ड्रग जिसका कोविड में इस्तेमाल होता है उसकी कालाबाजारी न हो. We'll take others. I think let me just. उसमें मुझे बस यही निवेदन करना है, मैंने काफ़ी विस्तार में पूर्व में बताया, WHO ने भी लोकलाइज्ड आउटब्रेक और कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कोई स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं जारी की है. उन्होंने अपने मेंबर स्टेट्स को ये अधिकार दिए हैं कि वो स्थानीय स्थिति का आकलन करने के बाद रिपोर्टिंग करें, जिसको WHO हूबहू जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई अपने वेबसाइट पर दिखाता है. नंबर 11. सर मैं पवन हूँ दैनिक भास्कर से. सर आपने बताया कि अभी एक्टिव केसेस जो हैं मोर देन अराउंड 2,70,000 हैं. इसमें से कितने हॉस्पिटल्स में हैं और कितने होम आइसोलेशन में हैं, और आप लोग ये जो डेली फिगर देते हैं कि इतने लोग ठीक हो गए, वो जो घर पे हैं उनका आप लोग डेटा कैसे बताते हैं? जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्लिनिकल गाइडलाइन प्रोटोकॉल जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि अगर प्री सिम्टोमेटिक लोग हैं या एसिम्टोमेटिक लोग हैं और पॉजिटिव टेस्ट हुए तो उनको होम आइसोलेशन में, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रहना है. विभिन्न राज्यों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि या तो उनको टेलीफोन के माध्यम से उनका हालचाल पूछा जाता है कि आपको बुखार है कि नहीं है, आपको सांस लेने में कठिनाई है कि नहीं है, और अन्य जो लक्षण है उसके बारे में,
कई राज्यों ने इस प्रकार के मरीजों को जो होम आइसोलेशन में हैं पल्स ऑक्सीमीटर दिए ताकि वो देख सकें कि उनका जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो 94 से नीचे तो नहीं चला गया है, और अगर चला जाता है तो उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल एम्बुलेंस लेकर नज़दीकी अस्पताल में पहुंचे। कुछ अन्य राज्यों ने ये व्यवस्था की है कि चिकित्सकों और पैरामेडिकल लोगों के दल जाएं और इनसे व्यक्तिगत संपर्क करें ऐसे लोगों से जो होम आइसोलेशन में हैं और उनसे उनका हाल चाल पूछें। तो ये तो हुआ कि उनके साथ कैसे उनको मॉनिटर किया जाता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब हम डिस्चार्ज दिखाते हैं तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक डिस्चार्ज पॉलिसी भी है जो कि सभी राज्यों के साथ शेयर की गई है। ये डिस्चार्ज पॉलिसी अस्पतालों में भर्ती मरीजों पे भी लागू होती है और जो होम आइसोलेशन में उन पे भी लागू होती है। तो जो हम रिकवरी का आंकड़ा दिखाते हैं उसमें ये दोनों शामिल हैं। जब होम आइसोलेशन के लोग रिकवर कर जाते हैं एज पर डिस्चार्ज पॉलिसी, और जब अस्पतालों में भर्ती लोग रिकवर कर जाते हैं एज पर डिस्चार्ज पॉलिसी। सर मैं ये आपको अलग से बता दूं जो है क्योंकि आपके कुछ अन्य कॉलीग्स भी हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेल्थ मिनिस्ट्रीज व्यू ऑन द कोरोना वायरस बीइंग एयरबॉर्न? After WHO said there was evidence emerging of airborne transmission of the coronavirus. A group of scientists have submitted their study findings to WHO, based on which WHO's spokesperson said that there are indications that the virus may be airborne. So it is a evolving situation, it's a dynamic situation. We are keeping abreast with the information coming out of WHO headquarters on this particular aspect, but you would all appreciate and realize that even during the initial stages of pandemic, we had, and the Honorable Prime Minister had, repeatedly emphasized 2 गज की दूरी। तो ये जो 2 गज की दूरी का कॉन्सेप्ट है या 6 फीट की दूरी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रोटेक्ट करता है उन छोटे ड्रॉपलेट से जो कि हवा में लंबे समय तक सस्पेंड रह सकते हैं और एयरबोर्न होने की जिनकी संभावना हो सकती है। नंबर 9। सर 3 से 5% लोग सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं, जैसा कि आंकड़ा है आपका। इन 3 से 5% लोगों को बचाने के लिए कई सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स की परमिशन दी गई है, जो कि न तो आपके सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में अवेलेबल है, खासतौर पे 2-3 बड़े अस्पतालों में, और ना ही ये कहीं और मिल रहे हैं। ऐसे मरीज क्या करें? उनको बोल दिया जाता है कि आप बाहर से खरीदें, बाहर से मिल नहीं रहा। तो इसकी क्या व्यवस्था हो गई है और कब तक ये लोगों तक पहुंच जाएगी या उन अस्पतालों तक पहुंच जाएगी जहां पर ये ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसमें रेमडेसिविर और तमाम ड्रग्स है? और रेमडेसिविर का क्योंकि आपने नाम लिया तो इसलिए मैं ये आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब या प्लाज्मा थेरेपी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको भारत सरकार का क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज़ में रखता है। तो ये मेन लाइन ड्रग्स नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी की ड्रग्स हैं। इनका उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाना है ये भी हमारा प्रोटोकॉल बताता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, किन परिस्थितियों में उपयोग नहीं किया जाना ये भी बताता है। और मैंने अभी पूर्व में निवेदन किया था कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने कुछ कंपनियों को दिशा निर्देश दिए हैं और राज्य सरकारों को भी एडवाइस दी है, उसमें रेमडेसिविर भी कवर होता है। सर इसी के ऊपर एक ऑनलाइन क्वेश्चन भी है, will remdesivir be cut from COVID treatment use after negative impact on liver has been indicated? What about other drugs like HCQ? I think more or less. HCQ is mentioned in our clinical treatment protocol. HCQ is mentioned also as a prophylactic drug for frontline healthcare workers. Remdesivir, as I told you, you see, it's a rapidly evolving situation.
not only in respect of remdesivir, but in respect of tocilizumab also. There have been a few studies which have indicated some adverse events. So we are aware of this, and within the ministry there is a technical group of domain knowledge experts headed by the Director General of Health Services that is looking into the evidence as it comes up, and if there would be a requirement to modify or refine our clinical treatment protocol, we would definitely do it. We have done it in the past also. 53. Question for Dr. Nivedita Gupta. Ma'am, a couple of months ago, there was a serosurveillance study that was initiated by the ICMR, and to check the level of the spread of the disease. Now, normally your practice always has been that once such a large study is done, you either upload it in the IJMR journal or something like that. But now it's been 2 months. And though a preliminary assessment was given that 0.73% of the population in those districts where it was done, showed signs of the infection. But can we know when is this study going to come out, or any more details about what does it say about containment zones, or in the larger population as to the showing of antibodies? Yeah, so as you said that the results of the study were shared to quite a large extent, and it was in an earlier press conference in which our Director General also participated. Now another sero survey is also in planning, and states are also going ahead for doing sero surveys. So you will see a lot of results coming up in public domain very soon. Yeah, I think, you see, once it is answered that you are getting the details very shortly in the public domain. I'll Let's supplement that. I'll supplement what ICMR has told you. After 27 days, we have a lot of query. Yeah, it's So, coming. the serosurveillance that you are referring to is the one conducted by ICMR across the country, and it basically focused on infections of mid-April, and the preliminary studies and findings were shared with you. As you know, all such serosurveillance studies or any other scientific study is subject to peer review, and those inputs are also incorporated. So that process is going on, and we will be in a position to share with you once that process is over. What ICMR has just now referred to are 2 subsequent developments. One is the seroprevalence study, which has been done in Delhi in terms of sample collection. 22,000 samples were collected in Delhi from 27th of June to 5th of July, and that has been done by NCDC. And NCDC's seroprevalence for Delhi, 11 districts of Delhi, that was done by roughly, I think, 15 labs, which had labs of GNCT of Delhi as well as of Government of India. That is being processed, and those results will also be out. The third independent development is that in near future, ICMR is planning a follow-up seroprevalence study, pan-India, to the earlier serosurveillance that they had done for mid-April infections. 157. सर, मैं प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज़ से। आपने कहा सर कि 49 डिस्ट्रिक्ट में 80% केसेस हैं इसके। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा तिरुवनंतपुरम, पटना, भागलपुर, गुवाहाटी, हर जगह लॉकडाउन किया जा रहा है दोबारा। क्या नए स्पॉट्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है चिंता बढ़ रही है, जो पुराने से नए में हम लोग नए एरियाज़ में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन करना पड़ रहा है? दूसरा एक सवाल है, एक मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका की है, MIT, उसने एक स्टडी किया है कि अगर दवा या वैक्सीन नहीं आया तो जनवरी या फरवरी अगले साल पर डे 2,87,000 केसेस इंडिया में आएंगे। क्या आपको इसकी आशंका लगती है?
पहला जो आपका प्रश्न है उसमें हम लोग राज्यों के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं और हम राज्यों को बार बार ये आवश्यकता बताते हैं कि जहां केसेस की संख्या स्टेबलाइज भी हो गई है वहां भी हम अपने एफर्ट्स को स्लैकन नहीं कर सकते। हमें अभी भी पूरे जोश के साथ कुछ गतिविधियां करनी है। वो गतिविधियां क्या हैं? एक, जहां भी नए केस आते हैं वहां कंटेनमेंट एरियाज का निर्धारण हो। दो, जब कंटेनमेंट एरियाज का निर्धारण हो गया तो उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर हाउस टू हाउस एक्टिव केस सर्च हो। तीन, तुरंत टेस्टिंग हो, उसके लिए टेस्टिंग को रैंप अप करना आवश्यक है, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है सबके सहयोग से, दिल्ली सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से, अन्य संस्थाओं के सहयोग से। और जब आप रैंप अप करते हैं टेस्टिंग को तो जो भी नए केस आते हैं उनको आप तुरंत आइसोलेट करें और उनका ट्रीटमेंट करें। आपने ये पाया होगा कि जिन शहरों में या जिन इलाकों में ये गतिविधि जहां भी कुछ धीमी होती है तो केसेस की तादाद बढ़ जाती है। तो ये मान के चलना होगा कि ये प्रतिदिन की लड़ाई है जिसमें कि हम अपने एफर्ट्स में कमी ना आने दें। ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न जो आपने एक मैथमेटिकल मॉडल के बारे में उठाया, आप सब अवगत हैं कि पिछले कई महीनों में, मार्च में, अप्रैल में, अनेक संस्थाओं ने अनेक प्रकार के मैथमेटिकल मॉडल से इस डिजीज के प्रेवलेंस और संख्याओं के बारे में प्रोजेक्शन करने की प्रयास की है। हमारा ये मानना है कि इस प्रकार के प्रयास अनेक पैरामीटर्स को मैथमेटिकल मॉडलिंग में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। वो दैट इज द लेक्यूना ऑफ सच मैथमेटिकल मॉडल्स। इन्फेक्शन या वायरस कैसे बिहेव करेगा, एक पैरामीटर ये है। इन्फेक्शन के प्रति सरकारें कैसे बिहेव करेंगी, राज्य सरकार और भारत सरकार, दूसरा पैरामीटर ये है। कम्युनिटी कैसे बिहेव करेगी, समुदाय, तीसरा पैरामीटर ये है। आप ये पाएंगे कि अधिकांश मैथमेटिकल मॉडल केवल पहले पैरामीटर पर फोकस करते हैं और वो भी कोई बहुत सर्टेनिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि वायरस कैसे बिहेव करेगा अलग अलग परिस्थितियों में। यानी डेंस आबादी में वायरस का बिहेवियर क्या होगा, स्कैटर्ड आबादी में क्या होगा, हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा समय हम इन मैथमेटिकल मॉडल्स पर लगाने के बनिस्पत अगर कंटेनमेंट, सर्विलेंस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट में लगाएं तो उसके बेहतर नतीजे आएंगे। 152। सर, मैं कुमार कुंदन हूँ, TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर गुलेरिया ने कुछ दिनों पहले बोला था कि जून और जुलाई में संभवतः पीक आ जाएगा। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी केसेस में हैं। तो क्या हम मान के चलें कि यहाँ पीक आ चुका है? और एक दूसरा सवाल ये भी कि अभी एयरबॉर्न पे तो आपने कहा, लेकिन अगर एयरबॉर्न है तो क्या उसके लिए कोविड प्रोटोकॉल और कुछ चेंज करने की जरूरत है या जिस तरह हम चल रहे हैं उससे हम सफलता पा सकते हैं? मैंने इन दोनों प्रश्नों के कुछ उत्तर दे दिए हैं अन्य आपके साथियों के प्रश्नों के जवाब में। एयरबोर्न में मेरा यही कहना है कि लगातार हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, हाथों को लगातार धोना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न तो खुद ऐसे आयोजन करने चाहिए न जाना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशनरी स्टेप हैं। मैंने ये भी निवेदन किया था कि ये डायनेमिक सिचुएशन है, इसमें साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे जो हमारा रिस्पांस है वो और रिफाइन होगा। 28। Hi sir, I am Ayushman from Mirror Now. 2 questions. First is you mentioned about the recovery rate. With testing number increasing, the test positivity rate is also increasing. Somewhere it was 8% 20 days ago and now it is somewhere 10 to 12%. Also sir, there are states like Telangana, Karnataka, Bengaluru to be particular, Patna. We are witnessing high case load. What is the strategy right now?
And also, sir, 3 teams have visited Telangana, IMCT teams. We don't know the feedback. What is the feedback that you have got from there? Love, sir, visited there. पहले तो मैं ये आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि जिन भी राज्यों में हमें ऐसा प्रतीत होता है या राज्य सरकारें हमसे अनुरोध करती हैं कि भारत सरकार से सहायता की, मदद की, टेक्निकल सपोर्ट की, हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, वहाँ केंद्र सरकार अपनी टीमें भेजता है। इन टीमों में कुछ डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट्स होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं और कुछ प्रशासकीय पदाधिकारी होते हैं। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि हमारे कॉलीग लव अग्रवाल गए थे तेलंगाना, कुछ अन्य भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज तमिलनाडु और कर्नाटक भी गए हैं, महाराष्ट्र भी गए हैं। और जो भी हम वहाँ सुझाव देते हैं, संतोष की बात यह है कि अधिकांश राज्य सरकारें उनका पालन भी करती हैं और हमसे और अधिक सहायता भी मांगती हैं, जो हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। पॉजिटिविटी रेट के बारे में आपने कहा, वहाँ मैं केवल एक छोटा सा परिवर्तन आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। किसी भी इलाके में जब टेस्टिंग कम होती है तो उसका अर्थ ये है कि आप केवल सिम्प्टोमेटिक लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। जब आप टेस्टिंग का फैलाव बढ़ाते हैं, जैसा दिल्ली में हुआ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पॉजिटिविटी कम्स डाउन। In the first week of June in Delhi, when the average per day tests were hovering around 8,000 or so, the positivity was 40%. Today, when the average per day tests are more than 25,000, the positivity is 10%. So eventually, with ramped up testing, the positivity comes down. Last question, number 10. नहीं आंकड़ों को लेके ऐसा लग रहा है, अभी ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि डिटेरियोरेशन पे जा रहा है, यानी हम पीक टाइम को हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो उसे लेके बहुत सारे लोग जो टेस्टिंग के 2 तरीके हैं उनको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा तरीका ज्यादा विश्वसनीय है। तो इस पर एंटीजन में आगे देखिए, ये हम सब मानते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी का भी मानना है कि RT-PCR टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का। RT-PCR टेस्ट करने की जो क्षमताएं हैं उनको भी ICMR निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, बढ़ी भी हैं, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। इसलिए हमने ये कहा था कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी उपयोग हो। वर्तमान में देश के भीतर प्रतिदिन 3 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट मैन्युफैक्चर करने की क्षमता है। ये डोमेस्टिक कैपेसिटी है और इसके बढ़ने की संभावना है। There are 10 rapid antigen kit manufacturers who have already approached ICMR for validation of their kits, and ICMR is engaged with them. तो rapid antigen test में यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो आप पॉजिटिव हैं, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है। यदि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आते हैं और आपको सिम्टम्स भी हैं, ऐसी परिस्थिति में ICMR का सुझाव राज्य सरकारों को ये है कि ऐसे व्यक्ति को, यानी सिम्प्टोमेटिक नेगेटिव पर्सन फ्रॉम रैपिड एंटीजन टेस्ट मस्ट गो इन फॉर अ RT-PCR टेस्ट। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you, friends. Thank you very much.